care that you succeed. Warm welcome, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. It was the 9th round of talks today, and these talks, viewers, also failed. It's day 54 of the farmers' agitation today. Even then, the government and the farmers who've met now for 9 straight days haven't been able to find a middle ground. Today was the 9th round of talks and it's come to nothing. Have the government-farmer talks now hit a complete dead end? इतना टाइम ऐसे हुआ, खाने का टाइम हो जाता है, फिर चलती है मीटिंग, फिर आगे कुछ नहीं निकलता, इससे ज्यादा नहीं। Even though the next round of talks have now been announced on the 19th of January, चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं, सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें, तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। Today was day 54 of the farmers' agitation, and the big question is, have the talks failed completely? Is the trust deficit now just too wide to bridge? And are all eyes now on 26th January with the ominous warning by the farm unions? ऐसा है ना, बातचीत हो भी जाओ ना भी हो जाओ, 26 तारीख को तो लोग आएंगे, हम पूरी परेड काट देंगे, पूरी परेड निकाल देंगे, सरकार आधी परेड काट दी, आधी को हम पूरी कर देंगे। Counting down to the 26th January face-off. Top story on To The Point this evening. All right, so the fact is, like you just saw, nothing came out on the 9th round of talks. However, the government also told the farm unions, 40 of them, that why don't they go and talk to the mediation panel? Well, on that account, there's another big controversy brewing with one of the panelists of the mediation panel. Mind you, the government told the farmers to talk to the mediation panel put together by the Supreme Court. There were 4 that were put together. One of them have now backed out, recused himself, Bhupinder Singh Maan. This is what he had to say on why he has left the panel mandated by the Supreme Court. इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं और जिस तरह लोगों में ये किसान आंदोलन की बात चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये समझा कि इसको छोड़ देना ठीक है। Were you under pressure to leave the panel? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा अपना डिसीजन है, मैंने किया है, बिल्कुल कोई किसी किस्म का जीरो प्रेशर। So now the panel, viewers, is incomplete because it was supposed to be a 4-member panel. One of them have backed out. The 3 other members right now, the farmers say, are all pro-government stand. So that aside, on the other hand, let's get to the politics of it all. The Congress party finally, on day 54 of the agitation, decided to hold parallel protests supporting the farmers. Congress MP Rahul Gandhi and General Secretary Priyanka Gandhi joined protest in Delhi against the farm laws. After being stopped by the cops near Raj Bhavan, Rahul and Priyanka went to Jantar Mantar. Congress, just to put it in perspective, has now launched a Kisan Adhikar Divas and is taking out marches across the country in solidarity with the farmers. Party workers will be holding Jan Andolans at all state headquarters and are planning to घेराव governor offices in every state. ये जो 3 कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून हैं कि अगर हमने इसको यहाँ नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है।
मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। You know, viewers, we're going to get down to the politics of it all, because how is it that the Congress on day 54 of the farmers' agitation has suddenly decided to hit the streets? That's for later. The collateral in the politics has always been the farmers. The farmers are very clear. It's been the 9th round of talks. Nothing is coming out of it. They will meet the government again on the 19th of January. But now it seems 26th January is going to be D-Day, where irrespective, because it doesn't seem the government is relenting in taking back the 3 farm laws, the farmers would be marching at Rajpath. Let's cut across to our panelists. I have Ravinder Cheema, President, Rashtriya Arthiya Association, the Middleman Association; Lalit Tyagi, State President, Kisan Union, Uttar Pradesh. Very shortly, I'll be joined by Gopal Agrawal from the BJP and Adil Singh Boparoy from the Congress. Adil has joined us already. त्यागी जी, आप ही से शुरू करते हैं. अब ये 9वां राउंड था, इसमें तो कुछ नहीं निकला है त्यागी जी. अब क्या 26 जनवरी को जो किसान कह रहे हैं कि राजपथ आएंगे आएंगे? जी जी, 26 तारीख की पूरी तैयारी है. 26 तारीख को हम लोग राजपथ आएंगे. पर त्यागी जी, ये तो पूरा कह रहे हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. नहीं, ये तो चाहते ही हैं कि ये हम इनके मन मुताबिक काम करें, लेकिन इनका भी तो फर्ज बनता है ना कि ये हमारे हिसाब से ये भी हमारे लिए कुछ काम करें. त्यागी जी, आज क्या हुआ मीटिंग में? नहीं, आज क्या होगा मीटिंग में? मीटिंग में वो दरअसल में माननीय जो कृषि मंत्री जी हैं हमारे, उनके पास हम किसानों को देने के लिए सिवाय तारीख के कुछ और है नहीं. देने वाले कोई और हैं, वो मीटिंग में आते नहीं. भाई, उनके पास में, तोमर जी के पास तो सिवाय डेट देने के कोई चारा नहीं है. उनके पास डेट ही है, वो डेट दे देते हैं. अब उन्होंने 19 तारीख की डेट दे दी हम लोगों को. चीमा साहब, क्या आप भी सहमत हैं त्यागी जी से कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी फार्मर्स, आपकी अर्थी एसोसिएशन से भी काफी है, कि आप लोग 26 जनवरी को राजपथ जाएंगे, या उसमें कोई ब्रेक है? क्या सारे किसान एकजुट हैं इसमें? प्रीति जी, ऐसा है, जहां तक किसान के 26 जनवरी को मार्च करने का सवाल है, इस पे किसान संगठनों का यही डिसीजन है कि इसको शांतिपूर्वक एक प्रोसेशन के तौर पे रखा जाएगा. इसमें कहीं भी कानून की कोई व्यवस्था या इसमें कोई टकराव की व्यवस्था किसान नहीं लाएंगे और ना लाना चाहते हैं. तो इसमें तो कोई ज्यादा जो है वो भयभीत होने वाली बात नहीं है. लेकिन मैं समझता हूं कि किसानों को 26 जनवरी सेलिब्रेट करने के लिए ऑनर करना चाहिए. उन्हें भी जो है वो 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट करने देना चाहिए साथ में. पर फिर भी जो किसान संगठनों ने, हमने सब ने फैसला किया है कि क्योंकि ये हमारा सेलिब्रेशन डे है, इसको हम शांतिपूर्वक रखेंगे जी. और कोई भी ऐसी घटना हम नहीं चाहते हैं कि कोई टकराव हो इसमें. चीमा साहब, एक बात बताइए, आपको पता है, आपको तो सिंगू बॉर्डर आने में कितना टकराव सहना पड़ा. मुझे बताइए, 26 जनवरी के वक्त अगर सारे बैरिकेड लगे होंगे, कि आप वो बैरिकेड ब्रीच करेंगे? जहां पे बैरिकेड लग गए वहीं बैठ गए? मुझे लगता है कि जिस तरह पहले हमने गवर्नमेंट से कोई टकराव नहीं किया है, और बैरिकेड जो है ये लगने भी नहीं चाहिए, और जिस साइड को हमें अलाउ किया जाएगा हम उसी साइड के अपना प्रोसेशन जो है. चीमा साहब, आपको अलाउ तो नहीं किया जा रहा है ना? जहां पे सिंगू बॉर्डर पे बैरिकेड लग गया, आप बैठ गए हैं. अब वो बैरिकेड तो नहीं उठेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, किसान संगठनों से बात चल रही है, प्रशासन की, दिल्ली गवर्नमेंट की बात चल रही है, और हमें लगता है कि शांतिपूर्वक जैसे हम अब नॉर्थर्न और ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेर पे भी गए थे, तो वहां पे भी कोई टकराव नहीं किया है. अपना प्रोसेशन के बाद वापस आ गए जी. त्यागी साहब और चीमा साहब, पर जो प्रशासन है वो दिल्ली गवर्नमेंट के तहत तो है ही नहीं ना. वो तो जो दिल्ली पुलिस है वो तो सेंट्रल के पास है. आपको तो पहले ही ब्लॉक कर दिया है. त्यागी जी, आप बताइए,
अगर बैरिकेड लगे हो, क्या वो बैरिकेड ब्रीच होंगे या जहां पर लगे हैं आप वहीं बैठे रहेंगे? फिर तो आप हिल नहीं पाएंगे, राजपथ नहीं आ पाएंगे। नहीं, हमको लगता है कि सरकार भी बैरिकेड लगाने से बचेगी इस बार, है ना। वो हमको भी मौका देंगे, क्योंकि हम लोग भाई अगर उनको रोकना ही है तो हमारे हाथ में तिरंगा को भी रोक रहे हो तो अपमान कर रहे हैं फिर उसका। नहीं, वो तो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। 26 जनवरी को हमारे जो जवान हैं वो परेड करते हैं, इसमें अगर किसान भी निकल पड़े तो कितनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ये कह रहे हैं। नहीं सर, हम लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, क्योंकि कारण है उसका, हम लोग तो जवान और किसान को साथ लेकर चलते हैं, नारा भी हमारा जय जवान जय किसान ही है। तो बैरिकेड ब्रीच नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नहीं सर, ये आप ये देखिए प्रीति जी, आज की डेट में ये 70 साल के इतिहास में पहला एक ऐसा आंदोलन है जिसमें किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति को जो है किसानों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये आप मानते हो? नहीं पहुंचाया है। मेरे मानना ना मानने से तो कुछ है ही नहीं त्यागी साहब। सरकार मानती है या नहीं मानती है, उनको ले आते हैं। गोपाल अग्रवाल जी, चलिए आपको ले आते हैं इसके बीच में। आप बताइए, बैरिकेड लगेंगे 26 जनवरी के लिए कि नहीं लगेंगे? देखिए, सरकार नहीं चाहती कि 26 जनवरी को किसी तरह का कन्फ्रंटेशन का चांस भी बने। देखिए, पूरी तरह से आप करनाल को देख लीजिए और भी जगह देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण है। कई लोग अराजक तत्व घुस जाते हैं ऐसे आंदोलनों में। ऐसा नहीं है कि किसानों को हम अराजक मान रहे हैं या हिंसा में उनका विश्वास है, लेकिन इनके बीच में कुछ अराजक तत्व बीच बीच में कहीं ना कहीं घुसते हैं और वह अपने राजनीतिक रोटियां सेकना या अपनी जो हिंसात्मक गतिविधियां कर सकते हैं। तो 26 जनवरी को सरकार किसी तरह का कोई भी ऐसा मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा चांस नहीं लेने को तैयार होगी। और किसानों को भी मानना चाहिए कि 26 जनवरी के पहले ही मुझे विश्वास है कि अब जो स्थिति है, किसानों का रास्ता विकल्प ये है कि सरकार के साथ बातचीत करके अपनी बात को मनवा लें कि सरकार बहुत सारी बातों को मानने को पूरी तरह तैयार है। गोपाल अग्रवाल जी, किसान तो ये कह रहे हैं ना, आप तारीख पे तारीख दे रहे हैं, आप बस इसे प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, आप इनका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, कर लीजिए, वो ये कह रहे हैं। नहीं, पेशेंस क्या टेस्ट कर रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं किसान, इससे किसानों का ही अहित हो रहा है। आज मैं बता रहा हूँ, 11 जो दिसंबर की मीटिंग थी उसमें सरकार पूरी तरह से तैयार थी इनकी ज्यादातर बातें मानने को, केवल तीनों लॉ को रिपील करना, खत्म करना, वापस लेने के अलावा एमएसपी पे भी व्यापक चर्चा के लिए तैयार थी, कैसे आगे बढ़ना उसके लिए तैयार थी, बाकी सारी मांगे तो मान ही ली थी। 3 लॉ को खत्म करने के अलावा उसमें अमेंडमेंट सबके लिए तैयार थी। तो अगर आज की स्थिति जो है 11 से किसानों के लिए और भी कम सुविधाजनक है। अगर 11 तारीख को सरकार के साथ वो नेगोशिएट करके कर लेते, तो मतलब आप कह रहे हैं कि तब कर लेते, अब सरकार नहीं मानने वाली है। चलिए, आई वांट टू ब्रिंग इन, मैं ये नहीं कह रहा जी, समझ में आ गया। कह रहा हूँ कि उस वक्त ज्यादा मनस्थिति थी इनकी फायदे होने की। अब तो सुप्रीम कोर्ट बीच में है, अब उनके फैसले सर, आपकी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी सेटअप की थी, उनमें से एक ने तो बोल दिया ना कि वो कमेटी में नहीं है, तो अब कमेटी का क्या रहा? मैं आदिल सिंह बोपराय को भी लाना चाहूंगी। आदिल सिंह बोपराय, वी गोना टेक इट इन हिंदी इफ यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज़ वी हैव द अदर farmers here who are more comfortable in the language. The question I want to ask you, Adil Singh, Adil, is क्या आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? आप 50 दिन के बाद अब आंदोलन किया है कांग्रेस ने, अब तक कहां थी कांग्रेस? देखिए प्रीति, जब भविष्य में इस समय का इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अहंकार को बोल्ड और काले अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ही शर्म नहीं कि 50 दिन से ज्यादा ये प्रोटेस्ट चल रहा है। लगभग 3 से 4 लाख किसान दिल्ली के नहीं, एक सेकंड अग्रवाल जी, आपको बीच में नहीं आए ना, ये आपको बोलने दिया, इनको भी बोलने दीजिए, इनको भी बोलने दीजिए। इतना उत्तेजित ना होइए। Over 70 farmers have lost their lives, but Mr. Modi has not expressed a single word of empathy and compassion. It is incumbent, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उनका दायित्व बनता है कि इन काले कानूनों को ये रिपील करें और फिर एक कमेटी बनाएं जहां पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो, सिलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल्स जाएं और पब्लिक हियरिंग्स होके बाद
जो लार्जर पब्लिक फार्म रिफॉर्म्स का मुद्दा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम किसानों को दबा लेंगे। They are resorting to trickery, they are resorting to machinations to somehow tyrannide the farmers. They are sadly mistaken. किसान अपना मन बना के आए हैं, किसान ये डेथ वारंट को स्वीकार नहीं करेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ा है। आप तो हमें जो लेबल देना चाहती हैं, आदिल सिंह बोगरा, यही पूछा जा रहा है ना आपसे, आप अभी तक थे कहां? क्योंकि 50 के दिन ऊपर हो गए हैं, आप आंदोलन, किसान आंदोलन अब शुरू करें, पहले क्यों नहीं कर दिया आपने? प्रीति, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी जिस दिन ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन अपनी आवाज बुलंद की थी। पंजाब में हमने अनशन किया था, दिल्ली में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद की थी। अगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देश में जो राइजिंग प्रोटेस्ट है, राइजिंग एंगर है, गुस्सा है, वो नहीं दिखता तो उनकी गलती है। वो एक अडानी अंबानी कानून लेके आए हैं जिससे किसान को दबाना चाहते हैं। और किसानों की एक और मांग है जिस मांग को मोदी जी ने भी माना था 2012 में जब वो मुख्यमंत्री थे, कि एमएसपी को एक लीगल राइट बनाना चाहिए। आज मोदी जी अपने ही स्टैंड से यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि अडानी अंबानी उसमें नहीं जाते। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि इफ यू गो इनटू दैट देन देयर इज अ लॉट व्हिच वेयर योर ओन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अंडर द यूपी, उसमें नहीं जाते। लेट्स लीव इट एट दैट। मूल विषय, प्रीति, आई फॉलो योर पॉइंट। मूल विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार ने आज जो देश का सत्याग्रह है उसके ऊपर उन्होंने दे हैव ट्राइड टू ओवरवेलम इट। गोपाल अग्रवाल जी, चलिए गोपाल अग्रवाल जी रिबटल किया आना चाहते हैं, उनके पास जाए। में पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सुबह से शाम ट्वीट करने के लिए उनके पास समय है, इन्हें स्पीचेस देने के लिए समय है, पर किसानों की मांग को स्वीकार करने का समय नहीं है। गोपाल अग्रवाल जी, जय जवान और जय किसान को जो नारा है, ओके आदिल गोपाल अग्रवाल उन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। गोपाल अग्रवाल जी बोलिए। आदिल, हाँ देखिए, पहले तो आपने पूछा कि 50 दिन बाद कांग्रेस क्यों जगी, कहाँ पे थे? Can we please go one by one? Accord your panelists the same respect he gave you. Please बोलिए अग्रवाल जी। हाँ, अब पहली बात यह है कि आपने पूछा 50 दिन के बाद कांग्रेस क्यों जगी, कहाँ थी? यह थे विदेश घूम रहे थे राहुल साहब, छुट्टियां मना रहे थे। और कांग्रेस तो पूरी तरह से अधिकार खो चुकी है किसानों के इस बात पे कहने के, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में तो एपीएमसी खत्म करने की बात है, उसका कोई जवाब नहीं है। जब पार्लियामेंट में ये डिस्कस हो रहे थे तब भी राहुल गांधी नहीं थे। अग्रवाल साहब देखिए, अगर आप इनके मैनिफेस्टो की बात करेंगे, ये 2012 मोदी जी की बात करेंगे जब उन्होंने बोला था कि भाई एमएसपी को लॉ बनाइए, तो उधर जाते ही नहीं है आप। आदिल जी, आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। वन बाय वन अग्रवाल जी बोलिए, मेक योर पॉइंट। ओके, लेट्स गो वन बाय वन। कैन आई जस्ट हैव गोपाल अग्रवाल जी बोलिए। हाँ देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से अधिकार नहीं है उसका। पार्लियामेंट में जब डिस्कस हुए थे तब राहुल गांधी पार्लियामेंट में नहीं थे। अब फिर जब इतने संगठन, इतना संघर्ष हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तब वो छुट्टियां मनाने वहां चले गए। अब छुट्टी मना के आए, अब पहुंच गए। तो इस तरह से कहना, ये सब बातें बेकार की बात है। हम जब किसानों के साथ सीधी बात कर रहे हैं, किसानों का हित किससे होगा? सरकार से बात करने से या राहुल गांधी से? अगर किसानों के नेता को इतना नहीं समझ आ रहा कि राहुल गांधी जी का इस वक्त कोई वजूद नहीं है इन कानूनों को वापस करवाने में या इन कानूनों में सरकार के विचार को बदलने में, राहुल गांधी का कोई भी अधिकार नहीं है। वो कुछ करते रहे, कुछ कर ले। तो किसानों का अगर हित चाहते हैं उनके नेता, तो सरकार से बात करें, सरकार उनकी बात सुनने को तैयार है। पर वो तो सरकार तो नहीं सुन रही है, वो कह रहे हैं ना त्यागी साहब। मैं किसान के पास ही जाती हूँ, तो नहीं सुन रही। मैं किसानों के पास ही जाती हूँ। त्यागी साहब, मैं आपके पास, ये जो कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया है, आप खुश हैं? कांग्रेस ने हमको समर्थन नहीं दिया है। ये अग्रवाल जी जो कह रहे हैं, मुझको ये समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं है इनको ये कहाँ से जानकारी मिल जाती है कि कांग्रेस समर्थन कर रही है या किसान कांग्रेस से समर्थन ले रहे हैं। कह रही है त्यागी जी, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। कांग्रेस ने आज करा पूरे देश में। त्यागी जी बोलिए। मैंने थोड़ी कहा। आदरणीय अग्रवाल जी, आप बहुत सीनियर हैं हमसे, एज में भी बड़े हैं। आप हमारी बात ये सुनिए। मैंने स्वयं जो है वो वोट जो है बीजेपी को दिया है, और वो 2 बार से मिनिस्टर हैं आपके यहाँ केंद्र में। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं आज की डेट में आपका विरोध कर रहा हूँ। तो इस बात को आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ये हमारा वोटर हमसे क्यों छटक रहा है। आज वहाँ कांग्रेस का कोई वोटर नहीं बैठा है, वो आपके लोग भी बैठे हुए हैं वहां पे।
आप लेकिन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं आपको कौन ज्ञान देता है, आपकी पार्टी को, आपको, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हो। Adil, 10 seconds and I need to close the. चलिए ठीक है त्यागी जी। आपका केवल अग्रवाल जी, आप त्यागी just 10 seconds. Okay, Adil 10 seconds I need to close the show. प्रीति जी, Adil 10 seconds I need to close the show. प्रीति जी, Sorry, क्या कह रहे हो? हम किसानों के साथ जी 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 हित के लिए खड़े हुए। Adil 10 seconds I'm closing the show. Go ahead. प्रीति, भारतीय जनता पार्टी को इतना अहंकार है अपनी 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 बहुमत का, अहंकार कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में किसान की आवाज appreciate you. Okay, gentlemen, और कांग्रेस पार्टी, gentlemen, can I just now close the show? Appreciate you all for joining us. The fact is, between the politics is the farmer the collateral, because that is happening right now if you look at it, because it's day 54, there is no resolution. What now is the big question? Are we building up to a face-off on the 26th January? Right now it does seem so. Will it be diffused before that? Let's hope it is. A quick break. To stay with us, up next is Rahul Kamal.